बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। Do you know, after today's lecture, now we are left with almost 2 more lectures to go. Then we will complete the chapter after almost 2 lectures. And I hope you have gone through all the previous lectures. Isn't it? Yes, it is. All are saying. Let us start our new lecture. And before going to the detailed lecture, just let me tell you 1 or 2 words. Kidney or kidneys. What is the basic function of kidney? Generally, kidney is performing a lot of functions, but the basic 2 functions, one of the functions from the 2 basic functions is urine formation and excretion, and another is osmoregulation. So kidneys, they produce urine, they maintain the balance of water and salts in the body, they excrete urine, and along with urine they also excrete nitrogenous waste, specifically urea. Now we move to the next lecture. It is kidney problems and kidney cures. First we will discuss kidney problems. And among the kidney problems, one very common kidney problem throughout the world is the formation of kidney stones. Kidney stone formation. What are kidney stones? Although there is no particular definition about kidney stones, and even nothing lies in our book about this definition, but just to take an idea, we define it. In our kidneys, various minerals like calcium, like oxalate, like phosphate, like uric acid, various chemicals, various minerals precipitate. What is precipitate? Insoluble part of a substance. It is PPT, precipitate. The minerals, when the blood is filtered in Bowman's capsule and traveling through the nephron tubule and collecting duct, then empties into the pelvic region of the kidney, in the pelvis of the kidney, central cavity of the kidney. Their minerals, if they are in copious amount, if they are in large amount, they precipitate and they crystallize. They keep on accumulating and they crystallize, they make needle like structures. तो उन मिनरल्स के पीपीटी बन जाते हैं, यानी वो इनसॉल्युबल नहीं है, पानी के साथ नहीं बह जाते, अगर ज़्यादा है तो कुछ रह जाते हैं किडनी के अंदर ही, और उनके दानेदार शक्ल में आते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, नीडल लाइक शेप में आ जाते हैं, और फिर इकट्ठे हो गए वो मिनरल्स। लाइक मैंने कहा है कि एक कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सलेट है, ये क्रिस्टल्स हैं, तो ये इकट्ठे हो गए एंड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ हार्ड स्टोनी मटेरियल, और वो आपस में इकट्ठे होके छोटी छोटी कंकरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दे आर किडनी स्टोन्स, और वो वहीं पे पड़े हुए रह सकते हैं किडनी के अंदर, या बनने के बाद उन स्टोन्स को किडनी यूरिन के साथ उनको बाहर धकेल देगा, वो यूरेटर में जाके फंस गया। अगर स्मॉलर है तो मुमकिन है बॉडी से बाहर ही चले जाएं, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो किडनी में स्टोन बन के पड़े रहे, यूरेटर में जाके रुक गए, या यूरेटर के एंड पे जाके रुक गए, यूरिनरी ब्लैडर में जाके रुक गए, यूरिथ्रा में जाके रुक गए, तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे किडनी स्टोन बन के पड़े होते हैं। What is the cause of kidney stone formation? Even rather, let me tell you what kidney stones cause. What do they cause? क्या cause करते हैं वो? उनसे नुकसान क्या होता है? What is the harm caused by kidney stones? They may cause urinary infections. हमारी जो किडनी है या हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, उनके टिश्यूज़ हैं, ट्यूब्यूल्स हैं या यूरेटर्स हैं,
या यूरिनरी ब्लैडर है, उनको इंजर कर सकते हैं, उनके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं। एंड दे मे आल्सो काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, या यूरिन के बाहर जाने में रुकावट बन सकते हैं। तो ये व्हाट डू दे काज। और साइट्स मैंने बता दी हैं। व्हाट आर द साइट्स वेयर किडनी स्टोन्स कैन बी फाउंड। मैंने कहा है कि वी कैन ऑब्जर्व इन सम पीपल किडनी स्टोन्स आर प्रेजेंट इन किडनीज, कुछ में किडनीज के अंदर और कुछ में यूरेटर के अंदर, कुछ में यूरेथ्रा के अंदर, कुछ में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। व्हाट इज़ देयर केमिकल नेचर। अब मैं केमिकल नेचर आपको बताने लगा हूँ इनकी। केमिकल नेचर के हिसाब से वैसे तो ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक ने जो मेजर टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो वन टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का इंसिडेंस जो चांसेस हैं होने के 70%, ज़्यादा चांसेस इसके हैं, 70% चांसेस इस स्टोन के होते हैं। और इसकी काजेज़ क्या है, वजह क्या है इस स्टोन बनने की। एक काज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, जो मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ काम जो हो रहे हैं केमिकल नेचर के, उनमें डिस्टर्बेंस आ गई तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो रही है नॉर्मली, तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया हुआ है, हाई कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया है। व्हाट इज हाइपर कैल्सीमिया। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। तो एक काज तो ये होगी, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनने में कैल्शियम ज़्यादा हो गया। और कैल्शियम ज़्यादा होने की कई सारी वजूहत हो सकती हैं। कैल्शियम इनटेक, बाज़ोकात कोई सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे हैं, बाज़ लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, या किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप कैल्शियम ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप में कैल्शियम की कमी है। डाइट के ज़रिए से या सप्लीमेंट्स के ज़रिए से, कोई इंजेक्टेबल्स या कोई टैबलेट्स वगैरह की शक्ल में, तो वो भी कैल्शियम अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया गया वो भी नुकसानदेह हो सकता है। रीनल फेलियर, किडनीज़ के सही काम ना करने की वजह से कैल्शियम लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो सकता है। और ये वैसे ही ये बातें बता रहा हूँ। पैराथायराइड एक ग्लैंड है हमारे नेक में पड़ा होता है, थायराइड और उसके साथ अटैच होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, उसके प्रॉपर काम ना करने से कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो ये रीजंस हैं, कैल्शियम ज़्यादा, हाइपर कैल्सीमिया हो गया। और दूसरा हाइपर ऑक्जेलूरिया हो गया हुआ है। हाइपर ऑक्जेलूरिया हो गया हुआ है, हाई ब्लड ऑक्जेलेट लेवल, एक और साल्ट है ऑक्जेलेट, हाई ब्लड ऑक्जेलेट लेवल इज कॉल्ड हाइपर ऑक्जेलूरिया। और उसकी काजेज़ सब्ज़ पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स हैं इनमें होते हैं, ये इनके ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी में ज़्यादा इंटेक होगा इनका। और टोमेटोज़, आपने ये भी सुन रखा होगा कि ये जो किडनी प्रॉब्लम वाले मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर ये कहते होते हैं कि पालक वगैरह ना खाएं और टोमेटो का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इनमें ऑक्जेलेट है, और ताकि वो स्टोन फॉर्मेशन को ना एग्रेवेट ना करे उसको। तो दो हमने बातें कर ली हैं। एक स्टोन का हमने डिस्कस कर लिया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तो इसके चांसेस हैं 15%, मैक्सिमम उसके थे 70%। तो हाई कैल्शियम लेवल हो गया है, हाई फॉस्फेट लेवल हो गया बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से ये स्टोन। और तीसरा स्टोन पड़ा हुआ है यूरिक एसिड स्टोन, इसके चांसेस 10% हैं। और इसकी रीज़न एनिमल्स से जो प्रोटीन्स यानी गोश्त वगैरह डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बॉडी को ज़्यादा सप्लाई हो सकता है। और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से या जेनेटिक रीजंस की वजह से इसकी एक यूरिक एसिड की वजह से एक आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द भी होता है, गाउट कहते हैं उसको। तो ये जेनेटिक ख़राबियों की वजह से या न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से या एक्स्ट्रा होने की वजह से या एनिमल प्रोटीन ज़्यादा हो जाने की वजह से यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है बॉडी में। तो ये नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। टॉपिक आज का सारा आसान है। तो ये वो हमने डिस्कस कर दिए किडनी स्टोन्स। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से किडनी से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं, डिसीज़ कौन सी हैं
और फिर इलाज बाद में हमने डिस्कस करना है। तो पहले हम डिसीज़ को हमने अलग कर लिया है, हमारी बुक ने मिक्स किया हुआ है इलाज को भी इनको भी। तो दूसरी डिसीज़ है रीनल फेलियर। किसी के किडनीज ने काम छोड़ दिया है, जनरली तो ये हो गया आइडिया, किडनीज ने काम छोड़ दिया। असल में किडनी के अंदर काम तो कर रहे हैं, हमें पता है फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का भी मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ग्लोमेरुलस है, जहाँ पे वैसे तो हर एरिया अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ब्लड ने फिल्टर होना है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन, पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलस डिस्ट्रक्शन, उसके किसी वजह से ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय हो गया नेफ्रॉन के, तो जाहिर है ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा काम ही डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन ही नहीं होनी, यूरिन नहीं प्रोड्यूस होना, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वेस्ट ही बॉडी से बाहर नहीं जाने, यूरिया लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो सारे वेस्ट मेटाबोलाइट ज़्यादा होना शुरू हो गए, तो बेतहाशा बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, इवन डेथ हो सकती है। तो इसकी रीनल फेलियर की रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, पैथोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। पैथोलॉजिकल डिजीज़ से मुताल्लिका, बीमारियों से मुताल्लिका को कहते हैं हम पैथोलॉजिकल नेचर के फैक्टर्स, यानी कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हैं जो इसका बायस बन सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, आपने पढ़ लिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, लास्ट चैप्टर में, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल किसी का रहता है वो नुकसानदेह है इन नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस को डैमेज करने में। डायबिटीज़, शुगर तो सारी बॉडी के, कौन सा बॉडी का हिस्सा है जिसको ये डिस्टर्ब नहीं करता। आप इसी बुक में 2 जगहों पे जाके पढ़ेंगे शुगर का ज़बरदस्त वे में कि क्या है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो 2 हो गए। और इन्फेक्शंस, कोई जर्म चले गए बॉडी के अंदर, जरासीम वगैरह, उससे इन्फेक्शन हो गई हुई है किडनी वगैरह में, नेफ्रॉन में, और उस तब डैमेज हो सकता है, किडनी स्टोन डैमेज कर सकते हैं, और कोई और टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो रीनल फेलियर का बायस बन सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा इन वजूहात का, इन प्रॉब्लम्स का? स्पेसिफिकली इंक्रीज ऑफ यूरिया लेवल ख़ास तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगा, हाई हो जाएगा ब्लड में, और नाइट्रोजन वेस्ट भी ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यूरिया लेवल जो ज़्यादा हो जाता है, इट कॉजेज़ हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के बहुत सारी जगहों में नुकसान आते हैं, कई सारे बॉडी पार्ट्स में, और एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। असल में होता क्या है, अगर किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए ना, ये वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए, तो किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो वो हार्मोन फिर जाके स्टिमुलेट करता है बोन्स के अंदर, हमारे बोन मैरो के अंदर, हड्डियों के अंदर हमारे ब्लड सेल बनते हैं, तो वो हार्मोन जाके आम तौर पे ब्लड सेल फॉर्मेशन को वो करता है, स्टिमुलेट करता है। और अगर वो ना बना, किडनी डिस्टर्ब हो गई, किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो गई हुई है, वो हार्मोन ही नहीं बन रहा वहाँ से किडनी से, तो फिर ज़ाहिर है ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसीज बनना कम हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी बॉडी में, और उन्हें रेड ब्लड सेल्स की कमी को, या जनरली कहते हैं खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। तो इस तरह से ये हाई यूरिया लेवल क्यों हो गया हुआ है, रीनल फेलियर के अंदर हुआ है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय होने से, और उसके हाई ब्लड प्रेशर हो गया और एनीमिया हो गया हुआ है। तो ये एक और हमने किडनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया, रीनल फेलियर को। पहले हमने डिस्क्राइब किया है किडनी स्टोन्स को, फिर रीनल फेलियर को, और फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है यूरीमिया, ये रीनल फेलियर की ही ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, एक्सट्रीम केस है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाई डिग्री रीनल फेलियर, यानी नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलर पार्ट है इंतहाई पीक पे चला गया है, इतना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है, डैमेज हो चुके हैं, तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं यूरीमिया को। एंड स्टेज रीनल डिसीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड यूरीमिया। और जब आपसे कहें व्हाट इज़ यूरीमिया, तो हम कहेंगे हाई डिग्री रीनल फेलियर, MCQ भी आ सकता है पेपर में, हाई डिग्री रीनल फेलियर इज़ कॉल्ड यूरीमिया। तो आमतौर पे यहाँ पे जब
लोगों को यूरेमिया हो जाए खुदा ना खास्ता किसी को, और दोनों किडनीज के सारे नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं, उनके ग्लैंडर से काम ही छोड़ दिया हुआ है, अब डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ट्राई करेंगे कि पेशेंट सरवाइव कर जाए। तो डॉक्टर अपनी तौर पे हतमी कोशिश कर रहे होते हैं। तो फाइनल जो होगा फिर उनके पास वन ऑप्शन इज़ लेफ्ट ओनली, एंड इट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट फिर वो करते हैं, किडनी मैचिंग करते हैं, और आमतौर पे ब्लड रिलेशन वाले लोगों से, बहन भाइयों से, पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, क्योंकि दूसरों से लेते हैं तो वो कामयाब नहीं होता। बाकी कोई डिटेल बाद में कभी आएगी तो बताऊंगा आपको। तो ये इस तरह से फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि उसके किडनीज जवाब दे चुके हैं, तो किसी और से लेके वो ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारे मौक़ों पर सक्सेसफुल नहीं होता, तो फिर वो उसके चांसेस हो जाएंगे उस बंदे के सर्वाइव करने के, तो मैच करके फिर वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, ये हमने किडनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। अब क्योर, ट्रीटमेंट। मैं टाइम देख लूँ कितने मिनट हो गए हुए हैं, टाइम मैं चेक कर लूँ। ये है जी, ओके, अभी है टाइम हमारे पास, हम कुछ बातें 2-4 और करते हैं। तो क्योर और ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स में, किडनी स्टोन होगा किसी को, हाउ टू रिमूव द स्टोन्स, कैसे उनको जिस्म से रिमूव किया जाए। तो अगर दे आर स्मॉलर इन साइज़, बहुत ही बारीक साइज़ में है, तो नेचुरली दे आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द यूरिन, बॉडी से वैसे ही रिमूव हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, तो वो तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लार्जर साइज़ में है, मुख्तलिफ साइज़ में हैं, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में, इसलिए उनको रिमूव करना ज़रूरी है, वरना किडनी को डैमेज कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं किडनीज़ में। तो जो ट्रेडिशनल वे है, जो रवायती तरीका है, कदीमी तरीका चला आ रहा है, इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। सर्जरी करके, ऑपरेशन करके, डॉक्टर उस बंदे की चीर फाड़ करके किडनी से निकालेंगे, और ये ज़्यादा पेनफुल और लॉन्गर मेथड है, और काफ़ी टाइम ले जाएगा बंदा हीलिंग होते हुए, और इस तरह से। तो अब तो बहुत ज़बरदस्त सफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ चुकी हैं, और बड़े शानदार किस्म के प्रोसीजर आ गए हुए हैं कि इतना पेनफुल भी नहीं होता, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और इतना बड़ा फाइन किस्म का प्रोसीजर होता है। तो वन ऑफ दोज प्रोसीजर इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? इट इज़, इसमें एक बात ये करेंगे, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज़ लिथोट्रिप्सी, बग़ैर ऑपरेशन के। तो आपने कहीं पे बाज़ात कमर्शियल्स में और इवन मुख्तलिफ़ जगहों पे डॉक्टर्स अपने इश्तिहारात वगैरह बना के बांट रहे होते हैं, और या केबल वगैरह पे दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं जी बग़ैर ऑपरेशन के आइए हम पथरी निकाल देंगे आपकी। तो वो लिथोट्रिप्सी है, और इट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, यूरेटर, गॉल ब्लैडर। पित्ते में पथरी है, यूरेटर में है, कहीं यूरिनरी ब्लैडर में है, किडनी में है, तो कहीं पे भी है, उसको नॉन सर्जिकल बगैर ऑप्शन के रिमूव करने को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इंट्राकॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी एंड अनदर इज़ एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और इसमें पहले इसको मैं बता दूं आपको, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यहाँ वेव्स यूज़ की जा रही है, एक्सरेज यूज़ की जा रही हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ की जा रही है वेव्स, तो वो जाके शॉक देती हैं, यानी तोड़ती हैं, उसको डैमेज करती हैं। वो मैनी टाइम्स ये वो जाके टकरा रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको डैमेज कर देती हैं, और उनको बिल्कुल रेत की तरह बारीक कर देती हैं उन स्टोन्स को। तो लेकिन ये है एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉडी, तो ये करते हैं, और बॉडी से बाहर से वो रेस को पास किया जाता है बॉडी के अंदर, और यानी कोई ट्यूब वगैरह नहीं पास की, बाहर से मशीन के ज़रिए से रेस को पास किया गया, फोकस किया जाता है, और उसको डॉक्टर स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कि क्या वो प्रॉपर जगह पे फोकस हो रही है जहाँ पे वो स्टोन पड़े हुए हैं। तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अभी ये एक वर्ड बता दूँ, अब कुछ और ऐसी एंडोस्कोप्स आ गई हुई हैं, ऐसे आलात आ गए हुए हैं कि कैथीटर सी, वो ट्यूब सी
अंदर हल्का सा सुराख करके स्किन में वो अंदर पास करते हैं बॉडी के अंदर, और वो जैसे इंजेक्ट कोई चीज़ की जा रही है, इंजेक्शन लगाते हैं इस तरह वो पास करके उसमें कैमरास लगे हुए हैं जो दिखा रहे होते हैं कि कहाँ वो स्टोन पड़ा हुआ है, और फिर उसी के ज़रिए से ही वो रेडिएशंस, वो वेव्स वगैरह जा रही हैं और वो जाके एग्जैक्ट उसको तोड़ती हैं, और फिर उसी ट्यूब ने उस के टुकड़ों जो बारीक कर दिया, जिनको जाके अंदर वो ट्यूब अंदर पास की है, उसने फिर टुकड़ों को सक भी कर लिया और चूस के उसको बाहर निकाल ले आती हैं। और जबकि एक्स्ट्रा कार्पोरल में इसने जाके उसको बहुत ही बारीक कर दिया, बाहर से रेज भेजी हुई हैं, अंदर इंसर्ट नहीं किया गया उस किसी ट्यूब वगैरह को, तो उन्होंने जाके उसको डैमेज कर दिया है और बिल्कुल रेत की तरह कर दिया, और फिर वो रेत टाइप मटेरियल जो है वो यूरिन के साथ ही बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड लिथोट्रिप्सी का जो यूज़ किया जा रहा है आमतौर पे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शॉक वेव एक्सरेज, काफ़ी मिकदार में ऐसी वेव्स जो शॉक देती हैं, तोड़ देती हैं, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वगैरह फ्राम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर भेजी जाती हैं, उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ रखी जाती है, उस एग्जैक्टली वहाँ रखी जाती है जहाँ पे स्टोन पड़े हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे भेज के उनको तोड़ा जा रहा है। और फिर जब वो टूट गए, स्टोन्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वेरी स्मॉल पीसेस, टाइनी पीसेस, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हो गए और सैंड बिल्कुल रेतनुमा बन गए, एंड फाइनली वो जो रेत टाइप मटेरियल है, वो जो स्टोन का बचा कुछ मटेरियल, वो फिर पास हो जाएगा यूरिन के साथ। तो ये तो इतना लेक्चर रिटर्न फॉर्म में हमने ये ले लिया, और वैसे क्योंकि 5 मिनट हमारे पास हैं, मैं एक चीज़ और भी साथ आपको बताता जाऊँ, इसी टॉपिक का पार्ट ही है। एक और तरीका है किडनी प्रॉब्लम्स को बेहतर करने का। अल्लाह की मर्ज़ी है कि कितना अरसा बंदा जीता है, सर्वाइव करता है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसने अपने जतन तो करने हैं, हीले बहाने तो करने ही हैं, तरीके मुख्तलिफ जगहों पे जाना है कि मेरा इलाज किया जाए। तो उसको प्रॉब्लम आ गया है, किडनीज काम नहीं कर रहे, वेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे, दोनों किडनीज जो है जवाब देते जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और डॉक्टर्स के पास आखिरी ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि वो है या किडनी ट्रांसप्लांट। उससे पहले डायलिसिस वाली टेक्निक फिर यूज़ करते हैं कि नेचुरल किडनीज जो हैं वो काम नहीं कर रही, अब उन्होंने आर्टिफिशियल किडनीज यूज़ करनी है। आर्टिफिशियल किडनीज का मतलब मशीनें यूज़ करनी हैं, जिन्होंने उस बंदे के ब्लड को फ़िल्टर करने हैं, जैसे कुदरती तौर पे गुर्दे बॉडी के अंदर हमारे किडनीज वो फ़िल्टर कर रहे थे खून को, ऐसा ही काम वो मशीनें करेंगी। तो वो है डायलिसिस, और इस डायलिसिस के 2 टाइप्स हैं। हीमोडायलिसिस, ब्लड को साफ़ करना, डायलिसिस का मतलब यही है, ब्लड को क्लीन करने को बोलते हैं डायलिसिस। और एक तरीका है हीमोडायलिसिस और दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि पेशेंट के जो बाजू होता है, बाजू में को पंक्चर करते हैं, उसमें सुराख करते हैं, उसको इंजर करते हैं, और वहाँ उसको पंक्चर करके उसके हमारी स्किन के नीचे, आप बॉडी अपनी स्किन को बाहर से ही देखें तो वो ब्लूइश सी नालियाँ नज़र आती हैं, खून की नज़र आती हैं, दे आर वेन नज़र आ रही होती हैं, और आर्टरी स्लाइटली डीप होती हैं। तो ये क्या करते हैं, इस बाजू में 1-2 जगहों पे फिस्टुला बनाते हैं, यानी एक उभार सा बनाते हैं, वहाँ पे फिस्टुला असल में कहते हैं कि वो जोड़ देते हैं आर्टरी और वेन को जोड़ दिया, ये फिस्टुला बन गया वहाँ पे। और जहाँ पे आर्टरी और वेन को जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि इन्होंने ब्लड निकालना भी है और उसको साफ़ करके मशीन के ज़रिए फिर दोबारा भेजना भी है ब्लड को। तो वो जो आर्टरी और वेन को जोड़ा है, अब आर्टरीज़ में ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ आ रहा है, स्पीडी आ रहा है, प्रेशर के साथ आ रहा है, और वेन्स में प्रेशर कम है। तो ये भी ना हो कि बिल्कुल कम हो, वेन के साथ रब्ता करें, अकेली सिर्फ वेन के साथ आर्टरी वेन को ना जोड़ें, सिर्फ वेन के ब्लड को बाहर निकालें, यूँ भी फिर वो काम नहीं बनेगा इनका।
प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, और यूँ भी ना हो कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जो आर्टरीज़ में है वो भी परेशान ना करे। तो लिहाजा इन दोनों को जोड़ देते हैं और ऐसा प्रेशर मेंटेन होता है, इन दोनों को मिला के ब्लड जब लेते हैं बाहर ले आते हैं तो वो सूटेबल होता है। तो इस तरह से क्या किया, उस जहाँ पे जोड़ा, उस जोड़ वाली जगह पे फिर कुछ दिनों के बाद जब ज़ख्म जब ठीक हो जाता है तो वहाँ पे एक कैथीटर, एक ट्यूब, एक सुई लगा देते हैं, जैसे हम ड्रिप लगवाते हैं हम, इस तरह की सुई सी वो नीडल पास करते हैं उसके अंदर जहाँ पे वो आर्टरी वेन को जोड़ा था, और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया बाहर। अब वो ब्लड कैथीटर के ज़रिए से, ट्यूब के ज़रिए से वो जा रहा है मशीन के अंदर, डायलाइज़र के अंदर, वो जो आर्टिफिशियल किडनी कह लीजिए वहाँ पे जा रहा है। वहाँ आर्टिफिशियल किडनीज़ में 2 चैम्बर्स बने हुए हैं। एक समझ लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के सेंटर में एक बारीक सी बहुत ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी हुई है, इंतहाई बारीक झिल्ली रखी हुई है जहाँ से वेस्ट मॉलिक्यूल इजीली पास हो सकें। अब वो जो डब्बा सा है, बॉक्स है उसके अंदर, उसके सेंटर में एक जैसे एक पेज को वर्टिकल फॉर्म में रख दिया सेंटर में, इस तरह के बारीक पेज की तरह बारीक शीट सी रख देते हैं, और उसके एक तरफ ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ लिक्विड सा होता है, पानी सा होता है, उसमें साल्ट वगैरह होते हैं। तो वो फिर वहाँ से जाके ब्लड में से जो वेस्ट हैं वो दूसरी तरफ गुजरते जा रहे हैं, जिस तरफ पानी है उसमें जा रहे हैं ताकि ब्लड साफ़ हो जाए। और जब वो साफ़ हो जाता है तो वही ब्लड फिर दोबारा एक और अगले सिरे से वो ट्यूब पास करके उसको वापस लाया जा रहा है, और फिर उसी वो जो फिस्टुला बनाया हुआ है, फिस्टुला में एक और नीडल पास करके उस ट्यूब को उधर लगा दिया जाता है। अब वो ब्लड जाना शुरू है, तो एक तरफ से खून निकलता जा रहा है और साथ ही दूसरी नीडल के ज़रिए से खून साफ़ होकर वापस जा रहा है बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी टाइम लगता है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो पेशेंट को वो उतनी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जितनी देर घंटा लगता है या डेढ़ लगता है, जितना भी लगता है। तो उसके बाद फिर पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। ये है एक डायलिसिस। और दूसरी डायलिसिस जो है वो पेरिटोनियल है, वो पेट में सुराख करके छोटा सा वहाँ से कैथीटर पास करते हैं, ट्यूब पास करते हैं अंदर, और लिक्विड जिसमें पानी है, साल्ट है, उसको भेज देते हैं। और यहाँ पे बस 1 मिनट की और बात करता हूँ, टाइम एंड हो रहा है हमारा। तो वो फिर लिक्विड को भर दिया उसके पेट के अंदर, पेशेंट के मरीज़ के पेट के अंदर उसको भर दिया, और अंदर हमारे जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, हमारे ये आंतें वगैरह पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, इनके इर्द गिर्द अल्लाह ने एक झिल्ली रखी हुई है, जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। वो सेमी परमेबल है। तो उस पेट की दीवार हमारी, जहाँ ये साइडें हैं, पसलियाँ वगैरह हैं, ये दीवार, और अंदर सेंटर में पड़ी हुई हमारी आंतें वगैरह, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वहाँ भर दिया। और वो झिल्ली जो है, मैंने कहा आंतों वगैरह के ऊपर पड़ी हुई पेरिटोनियम, वो सेमी परमेबल है। वो फिर हमारी जो खून की नालियाँ अंदर होती हैं बेतहाशा, उनमें से क्योंकि वहाँ यूरिया पेशेंट के अंदर ज़्यादा हो चुका है, किडनीज़ काम नहीं कर रहे, तो वो यूरिया ज़्यादा से कम किधर, वो जो लिक्विड भरा है पेट के अंदर, उसके अंदर आना शुरू हो गया। यूरिया आता रहा, तो कई घंटे उसके अंदर बंदा अपना काम काज करता रहे, बस वो पेट के अंदर भर के उसको भेज देते हैं, जब अपने काम काज करते रहो, कोई बात नहीं, इतने घंटों के बाद आपने आना है। तो फिर हम आपको या वो टाइम खुद ही बता देते हैं, लंबा टाइम देते हैं, फिर आके उतने देर के बाद निकाल लेंगे फिर ट्यूब के ज़रिए से उस लिक्विड को। अब लिक्विड जब वापस आएगा उसमें बहुत सारे वेस्ट भी आ चुके होंगे। तो ये भी एक टेक्निक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यहाँ पे हम लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बातें करेंगे, और उम्मीद है ये लेक्चर आप इजीली तैयार कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अप टिल नेक्स्ट लेक्चर।